So welcome students. In our previous lecture, we discussed some initial concept related to the morphological features of bacterial cells. हमारे previous lecture में हमने बैक्टीरिया का एक एवरेज साइज, then the average shape of bacterial cell, the different type of arrangement of bacterial cell, cocci, bacilli, ये स्टडी किया था. Now we have to discuss the first part of अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे ये कंसेप्ट को साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ से. ठीक है. एंड इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इज अ फ्लैजेला. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ in case of the prokaryotic bacterial cell, flagella. These flagella are the specific type of extensions. ये एक टाइप के एक्सटेंशंस है. द एक्सटेंशंस अराइजिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी. कहाँ से एक्सटेंड होते हैं ये? arising from the basal body, and this basal body is now present in the ectoplasmic area of bacterial cell. The ectoplasmic area, जो भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट, the cytoplasm which is present towards the peripheral part towards the membrane of a cell is called as the ectoplasmic area. इस ectoplasmic area में एक basal body present होगा, and from this basal body with the help of several type of protein एक structure arise होता है, a protein, flagellin protein, a specific type of protein which is called as flagellin type of protein, ranging between 20,000 to 40,000 Daltons, a molecular weight of this protein depending upon the different type of bacterial species. अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल स्पेसीज में इस प्रोटीन का जो भी अमाउंट है, मॉलिकुलर वेट है, ये अलग अलग होता है. सो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर बेसल बॉडी गिव्स राइज टू अ फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन. द मोनोमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, इस फ्लैजेलिन प्रोटीन के काफ़ी सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर यहाँ बनाएंगे एक फिलामेंट, एंड दिस फिलामेंट एक्ट्स एज द फ्लैजेला. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला में. पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया बेसल बॉडी, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज अ फिलामेंट दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन. सो दिस फ्लैजेला is an organ of motility. The lower cells, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला acts as a organ of motility, that is a organ of locomotion. ये लोकोमोशन शो करेगा यहाँ पे. In a surrounding medium, by using these flagella, bacterial cells can move in different directions. Okay, and again, depending on this number of flagella present per cell of bacteria, they are basically categorized into 4 different types. Okay, 4 अलग अलग types है depending on the number of flagella present per cell of bacteria. We have 4 different type of bacterial cells. Again एक morphological features है. One of the type of morphological feature where first category is called as monotrichous type of bacteria. पहले कैटेगरी को हम कहेंगे monotrichous. Then we have lophotrichous. Second category Lophotrichous type of bacteria. The third one Amphitrichous type of bacteria. And the last one, it is referred as Peritrichous type of bacteria. So depending on the number of flagella present per bacterial cell, the bacteria are classified into these 4 different types: monotrichous,
then we have the Lophotrichus, then the Amphitrichus, and lastly the Peritrichus. Again, it is noted that flagella are not present in each and every type of bacterial cell. सभी के सभी बैक्टीरियल सेल में या हर बैक्टीरियल स्पेसीज में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल जो मोटिलिटी शो करेंगे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, वहाँ हमें फ्लैजेला दिखाई देता है, लेकिन हर बैक्टीरिया मोटिलिटी शो नहीं करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल वेदर इट शो the ability of motility or not, they are classified into two types as motile bacteria. पहली कैटेगरी है हमारी मोटाइल बैक्टीरिया, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू शो द मोटिलिटी। अगर वहाँ फ्लैजेला प्रेजेंट है देन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, इसे कहा जाएगा मोटाइल बैक्टीरिया। और अगर यहाँ फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है then such a type of bacterial species is referred as non-motile bacterial species, या उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो ये जो चार अलग अलग टाइप है, अगर यह बैक्टीरिया मोटिलिटी शो करता है, कोई बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया है, तो इन केस ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टाइप ऑफ फ्लैजेला आर ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास मोनोट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ मोनोट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट कैटेगरी, व्हेन इन अ बैक्टीरियल सेल अ सिंगल पोलर फ्लैजेला इज प्रेजेंट। इस टाइप से अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल पोलर फ्लैजेला है प्रेजेंट एट आइदर पोल ऑफ बैक्टीरिया, इन दो में से किसी भी एक पोल पर वो प्रेजेंट हो सकता है, देन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज रेफर्ड एज द मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, ठीक है। द सेकेंड वन, दूसरी कैटेगरी क्या है यहाँ पर, लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। सपोज इन अ बैक्टीरियल सेल more than one flagella are present at one of its पोल, ये जो दो पोल होते हैं एक सेल में, यहाँ पर किसी एक पोल पर एक से ज़्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट है, देन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इज रेफर्ड एज लोफोट्रिकस फ्लैजेला, एंड इसी कहा जाता है द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। क्या कहेंगे इसे, द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। 1 से ज्यादा रहेंगे, मोर देन 1 फ्लैजेला एट 1 एंड। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास, एम्फीट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सो इन अ बैक्टीरियल सेल if 1 or more than 1 flagella are present at both the end, ठीक है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा फ्लैजेला हो, which are present at both the ends of that particular bacteria, both the poles of bacteria. Okay, so it is referred as the third category, that is amphitrechous type of bacterial cell. So here maybe 1 flagella is present at both the poles of a bacterial cell, or a tuft of flagella may be present at both the poles. दोनों पॉसिबिलिटीज रहेंगे यहाँ पे, और दोनों कंडीशन में इस पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियल सेल को कहा जाएगा एम्फीट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब लास्ट कैटेगरी है हमारे पास पेरीट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल। If a flagella are distributed all over the external surface of bacterial cell, like this one, the entire bacterial cell externally is covered by numerous number of flagella. अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एक्सटर्नल साइड से कंप्लीटली मल्टीपल फ्लैजेला से वो पूरा सेल, कंप्लीट सेल कवर होता है, तो इस टाइप को हम कहेंगे पेरीट्रिकस टाइप ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पर है
the flagella are distributed all over the body, that is all over the cell, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इनका एंटायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना हुआ होता है. सो इस टाइप से इन केस ऑफ द फ्लैजेला वी हैव दिस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल. पहला आएगा हमारे पास मोनोट्रिकस, वेयर अ सिंगल पोलर फ्लैजेला इज प्रेजेंट. क्या है यहाँ पर? एक सिंगल पोलर फ्लैजेला प्रेजेंट है. दूसरे केस में a tuft of flagella may be 2 or more than 2 flagella present at only one pole of bacterial cell. That particular category will be called as the Lophotrichus. If one or more than one flagella are present at both the poles, then that particular category of bacterial cell will be referred as the Amphitrichus. और लास्ट में हमारे पास आता है Peritrichus. The flagella are distributed all over the cell. ठीक है, अब हमें ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर स्टडी करना है. ये तो हमने देखा है बस द एक्सटर्नल पार्ट, किस तरह से ये फ्लैजेला यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. या हमें इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर स्टडी करना है. सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, अगर स्ट्रक्चरली इसे देखा जाए तो 2 अलग अलग बेसिक कंपोनेंट से तैयार होता है. पहला कंपोनेंट होगा यहाँ पे बेसल बॉडी एंड सेकेंड कंपोनेंट ये तैयार होगा द फिलामेंट. ओके, सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट फ्लैजेला के बैक्टीरियल सेल में. पहला कंपोनेंट है यहाँ पे बेसल बॉडी एंड द सेकेंड कंपोनेंट is the filament which extends outside the cell. Now this basal body is remain present in membrane coverings in both type of bacteria, gram positive हो या चाहे gram negative हो. The basal body is present within the membrane coverings and filament is present at एक्स्ट्रासेल्यूलर पार्ट ऑफ अ सेल. 2 अलग अलग टाइप के रीजन में 2 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होते हैं. बेसल बॉडी जो है, दिस बेसल बॉडी विल रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन व्हाइल द फिलामेंट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ बैक्टीरियल सेल. यहाँ पे फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट हो गए? आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मेम्ब्रेन कवरिंग्स 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन कवरिंग्स डिफरेंट है. ये आने वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे. सो बेसल बॉडी के अगर देखें तो बेसिक कंपोनेंट होते हैं. दिस बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये बेसल बॉडीज? मेम्ब्रेन कवरिंग्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ rings. So in case of gram negative bacteria we have 2 different categories of bacteria depending on the type of cell wall, जिसे हम आगे देखेंगे. फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए कि ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड सेकेंड टाइप इज ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. So in gram negative bacteria there are 4 different type of rings which are associated with membrane coverings, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 different type of rings are present in association with the membrane coverings. तो 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में जो भी बेसल बॉडी का कंपोजिशन है, ये बेसल बॉडी का कंपोजिशन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है. सबसे पहले हमारे पास है ग्राम नेगेटिव कैटेगरी. इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव कैटेगरी 4 टाइप ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द 3 बेसिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग. और यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 2 अलग अलग टाइप के रिंग प्रेजेंट होते हैं बेसल बॉडी में. तो अभी हम ये बेसल बॉडी डिस्कस करते हैं, किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इन केस ऑफ बेसल बॉडी इन सिंपल अगर देखें तो इट इज अ रिंग्ड स्ट्रक्चर, मल्टीपल टाइप ऑफ रिंग मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. ये रिंग प्रोटीन से बने होते हैं एंड दीज प्रोटीन द प्रोटीनेसियस रिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड at different membrane within
the interior part of membrane and held together by means of a central rod-like structure. And again, this central rod-like structure is also composed of the protein. ये एंटायर स्ट्रक्चर प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है. So in this pattern, multiple rings are remain interconnected. और यहाँ सबसे पहले हमारे पास ये 4 बेसिक टाइप के रिंग्स है. द 4 बेसिक टाइप ऑफ रिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अ ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ हमने देखा है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कितने रिंग प्रेजेंट है. यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के रिंग प्रेजेंट है विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट लेयर ऑफ मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन के जो अलग अलग लेयर्स हैं, इन अलग अलग लेयर्स में मेम्ब्रेन कवरिंग के ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे एंड रिमेन इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. इस तरीके से यहाँ तैयार होता है एक सिंगल बेसल बॉडी. ठीक है, यू कैन विजुअलाइज दिस एंटायर स्ट्रक्चर इन बुक में एंटायर डायग्राम आपको अच्छे तरह से दिखाई देता है, दिया है वहाँ पर इसे देखिए किस तरह से प्रेजेंट होगा ये. लाइक दिस वन. अब ये 4 अलग अलग रिंग्स जो है, ये चारों रिंग अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो गए, इन डिफरेंट पोजीशन. तो सबसे पहला जो रिंग है, अ प्रोटीन रिंग, it is present in the cytoplasmic membrane of cell. The first ring कहाँ प्रेजेंट है ये? एक सेल के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंड दिस पर्टिकुलर रिंग इज नाउ कॉल्ड एज एम रिंग. क्या कहा जाएगा इस पहले रिंग को? एम रिंग कहा जाएगा. दिस एम रिंग इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में. इन शॉर्ट इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स अ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, द प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ एवरी टाइप ऑफ सेल. यहाँ पर ये पहला बेसल बॉडी का पार्ट प्रेजेंट होगा जिसे कहा है एम रिंग. नाउ अबव द सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल साइड का जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हियर ऑल्सो अ सेकेंड टाइप ऑफ लेयर इज प्रेजेंट. क्योंकि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, पहला लेयर क्या हो गया हमारा? लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और अभी ये जो सेकेंड लेयर है, दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज a cell wall, and within this cell wall we have next type of a particular ring which is called as P ring. क्या कहेंगे इसे हम? P ring कहेंगे. the ring of protein which is present in peptidoglycan layer, because in case of bacterial cell the cell wall is also called as a peptidoglycan layer. इसे म्यूरिन भी कहा जाता है. ठीक है, पहला रिंग एम रिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद आएगा पी रिंग विच इज प्रेजेंट इन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. नाउ इन बिटवीन दीज 2 layers, the layer of cell wall and the layer of cell membrane, there is some empty space is present, and within this space we have a presence of third ring which is called as the S ring. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड रिंग. क्या कहा इसे हमने? एस रिंग कहा है. द एस रिंग इज लोकेटेड इन बिटवीन the M ring and the P ring, that is in between the cell membrane and the peptidoglycan layer or the cell wall. And this uppermost, again here we have a different type of layer, particularly in only gram negative bacteria. Okay,
ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये स्पेसिफिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का बेसल बॉडी स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये साइज में लार्ज होता है। 4 रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लास्ट रिंग है, ठीक है, सबसे पहले एम रिंग सेल मेम्ब्रेन में, उसके बाद आया हमारा ये एस रिंग विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। देन वी हैव दिस पी रिंग विच इज प्रेजेंट इन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, एंड देन एक सबसे बाहर और रिंग प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड एज द एस रिंग, सॉरी विच इज कॉल्ड एज द एल रिंग। द लास्ट में जो भी प्रेजेंट है इसे कहा जाएगा एल रिंग, and this L ring is present in this outermost layer of gram negative bacterial cell। ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर ये जो आउटरमोस्ट लेयर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है लेयर ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, which is absent in case of gram positive bacteria. In short, it is denoted as LPS, layer of lipopolysaccharide। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग रिंग प्रेजेंट है। पहला रिंग M, देन S, देन P एंड लास्टली L। ये 4 अलग अलग रिंग से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बेसल बॉडी तैयार होता है। एट द सेंटर, इसके सेंटर में एक रॉड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ऑल दीज रिंग आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर in extracellular side then extend into a next part, the initial part of filament, क्योंकि इसके बाद यहाँ से आगे का जो भी पार्ट है it will be a part of filament। ये इतना कंप्लीट बेसल बॉडी का पार्ट हो गया। आफ्टर बेसल बॉडी जब भी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसके बाहर आएगा इन दिस एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक एरिया, यहाँ पे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक शेप में कन्वर्ट होता है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज द हुक विच एक्ट्स एज अ बेसल पार्ट ऑफ फिलामेंट, एंड दिस हुक देन कंटिन्यूज, यहाँ से ये हुक कंटिन्यू होगा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, एंड दिस फिलामेंटस आउटग्रोथ इज नाउ कॉल्ड एज flagella, that is filament of flagella। ये फ्लैजेला का फिलामेंट होगा। ठीक है, तो एंटायर जो फिलामेंट है फ्लैजेला का इस टाइप के स्ट्रक्चर से तैयार होता है। अब ये जो पूरा देखा है हमने प्रेजेंस ऑफ दिस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग प्रीडोमिनेंटली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही ये लेयर ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है ये थीन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 2 रिंग्स, दैट इज एम रिंग एंड एस रिंग। ठीक है, क्या होगा ग्राम पॉजिटिव में द बेसल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 टाइप ऑफ रिंग्स, द एस रिंग एंड द एम रिंग्स। तो देखिए एक बार फिर से द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी इन केस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वेयर वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स विच आर रिमेन एसोसिएटेड विथ ईच अदर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ सेंट्रल रॉड मेड अप ऑफ प्रोटीन। In case of gram negative bacteria, the 4 different type of rings are distributed among the 3 membrane। 3 मेम्ब्रेन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन which is directly in contact with the protoplasmic part of cell। Just above the cell membrane a second layer is present called as peptidoglycan or the cell wall। Above the cell wall only in case of gram negative bacteria we have the layer of lipopolysaccharide। so 3 अलग अलग लेयर है, और इन 3 अलग अलग लेयर के साथ these 4 type of rings are associated। सेंटर में यहाँ क्या दिखाई देता है हमें, ये सेंट्रल प्रोटीन,
रॉड, क्या कहेंगे हम इसे? सेंट्रल प्रोटीन रॉड कहेंगे। एंड दिस सेंट्रल प्रोटीन रॉड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड टू फॉर्म अ बेंड लाइक स्ट्रक्चर रेफर्ड एज द हुक, एंड दिस हुक इज अ बेसल पार्ट ऑफ फिलामेंट। ठीक है, ये हुक क्या होगा यहां पर? बेसल पार्ट विच कनेक्ट द बेसल बॉडी विथ द फिलामेंट। एक इंटरमीडिएट पार्ट यहां पर प्रेजेंट होगा, जो इंटरमीडिएट पार्ट बेसल बॉडी को इस फिलामेंट के साथ कनेक्ट करने का पार्ट रोल प्ले करेगा। एंड दिस हुक, ये फिलामेंट रोटेशन शो नहीं करेगा। जो भी रोटेशन दिखाई देते हैं हमें या जो भी मूवमेंट है, वी नो द फ्लैजेला कैन रोटेट अप टू 360 डिग्री। ठीक है, ये जो कंप्लीट रोटेशन है इस फ्लैजेला का, इट कैन रोटेट इन अ डायरेक्शन कंप्लीटली 360 डिग्री का रोटेशन ये फ्लैजेला शो कर सकता है। दैट इज बिकॉज ऑफ ये जो रिंग्स है, मेनली दिस रिंग प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक रिंग और द एम रिंग, दिस पर्टिकुलर रिंग हैज एटीपेज एक्टिविटी। यहां पर एक एटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, एंड बिकॉज ऑफ द एटीपेज एक्टिविटी दिस एम रिंग यूटिलाइजेज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यहाँ एटीपी के मॉलिक्यूल यूटिलाइज करेंगे, एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, दैट इज इट्स ब्रेकडाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो भी एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन की जाती है, इसी एनर्जी को यूज करके ये सेंट्रल प्रोटीन रॉड जो है ये मूव होगा। ठीक है, एंड बाय द मूवमेंट ऑफ दिस सेंट्रल प्रोटीन रॉड, दिस हुक पार्ट विच इज प्रेजेंट एट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, ये रोटेट होगा। सेल के अंदर जो साइड यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज द साइटोप्लाज्मिक साइड। क्या हो गया ये? द साइटोप्लाज्मिक साइड। तो ये अलग अलग रीजन प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये फिलामेंट रोटेट नहीं करेगा, फिलामेंट स्टेबल है। रोटेट क्या करेगा? सिर्फ हुक रोटेट करेगा, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ हुक दिस फिलामेंट कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर से एक बार देखिए स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट। बेसिकली ये 4 अलग अलग रिंग अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट है, अलग अलग मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। यही स्ट्रक्चर अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर देखें, तो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वी ऑब्जर्व दैट as the gram positive bacteria do not contain the external layer of lipopolysaccharide, here the entire basal body is composed of only these 2 rings, that is the S ring and M ring, where this M ring, ये जो S ring है, ये S ring इस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के साथ प्रेजेंट होगा डायरेक्टली। जहाँ पर P रिंग प्रेजेंट है ग्राम निगेटिव में, वहीं पर ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा S रिंग विच इज डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ द हुक पार्ट। यही जो सेंट्रल प्रोटीन रॉड का एक्सटेंशन है, जो हुक के फॉर्म में प्रेजेंट है, यही हमें प्रेजेंट दिखाई देता है। ओके, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्स्ट पार्ट फ्लैजेला, एंड अगेन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट रीजन, द हुक, by obtaining the energy through the hydrolysis of ATP, the ATPase activity, the bacteria is able to show different type of movement. ठीक है, मोटिलिटी में भी अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। द फ्लैजेलर मूवमेंट, लाइक वी हैव द ग्लाइडिंग मूवमेंट, यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रेजेंट है। द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया ओवर अ सॉलिड सरफेस, ग्लाइडिंग मूवमेंट किसे कहा जाएगा? अगर कोई बैक्टीरिया सॉलिड सरफेस पर मूवमेंट शो करता है, देन सच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, चाहे एक फ्लैजेला की प्रेजेंस से हो या न्यूमरस नंबर ऑफ फ्लैजेला की प्रेजेंस से हो, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट विल बी रेफर्ड एज द ग्लाइडिंग movement of bacterial cell. The bacterial cell also shows another type of movement called as the taxis. Okay, the movement of bacterial cell
towards or away from impulse, because these cells, the living cell, okay, and we know that the living organism possess one property or one character, that is the ability of sense, and through that ability the impulse जो recognize करेंगे ये bacterial cells, they show different type of taxis. और ये इम्पल्स जो है दोनों टाइप के होंगे, पॉजिटिव इम्पल्स भी होंगे, निगेटिव इम्पल्स भी होंगे. अगर ये लाइट के इम्पल्स है, द इम्पल्स ऑफ लाइट, देन वी कैन कॉल इट एज फोटोटैक्सिस, टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट. अगर ये इम्पल्स एयर के है, लाइक द एरोबिक बैक्टीरिया विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द एयर. अगर इन्हें सॉलिड या किसी लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट है तो ये उस सरफेस के तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वहीं पर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल है और उस एयर से ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करेंगे. इसे हम कहेंगे एरोटैक्सिस. द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टुवर्ड्स द एयर, एरोटैक्सिस. देन द कीमोटैक्सिस, द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ केमिकल्स. यह अलग अलग टाइप के मोटिलिटी है, अलग अलग टाइप के मूवमेंट है जो बैक्टीरियल सेल इन जनरल हमें शो करेंगे बाय यूजिंग द फ्लैजेला. ठीक है, यह पहला पार्ट हो गया हमारा साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला. नाउ अलोंग विद द फ्लैजेला अ बैक्टीरियल सेल, mostly the gram negative type of bacterial cell shows the presence of another type of outgrowth which are in general smaller in size than that of flagella. ये जो अलग अलग टाइप के आउटग्रोथ है, यहाँ पर हमें दूसरा आउटग्रोथ स्टडी करेंगे हम अभी, द सेकेंड आउटग्रोथ कॉल्ड एज द पिलाए. ओके, क्या है ये? पिलाए. So if we consider a single bacterial cell, सबसे बड़ा आउटग्रोथ क्या होगा इस बैक्टीरियल सेल का? अ फ्लैजेला. ठीक है, ये फ्लैजेला द लार्जेस्ट टाइप ऑफ आउटग्रोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी. नाउ अलोंग विथ फ्लैजेला, इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंटली ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हम यहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे. ठीक है, ये देखेंगे हम आगे ग्राम निगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है. तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इस फ्लैजेला से शॉर्ट ऐसे दो अलग अलग टाइप के आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, जनरली 1 to 2 पर सेल. ओके, मैक्सिमम 1 और 2 आउटग्रोथ पर बैक्टीरियल सेल, जिन्हें कहा जाएगा पिलाए. क्या कहेंगे हम इन्हें? पिलाए कहेंगे. ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज पिलीन. ओके, फ्लैजेला तैयार होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, यहाँ पिलाए तैयार होता है पिलीन प्रोटीन से. इन साइज ये फ्लैजेला से शॉर्ट होते हैं. ओके, अब ये जो पिलीन है मोस्टली एसोसिएटेड विथ अ फेमस concept of bacterial conjugation. कहाँ इन्वॉल्व होंगे ये? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, जहां इस बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा. एंड वी नो दैट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल इन एनी टाइप ऑफ सेल और ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक अलग टाइप का प्लाज्मिड होता है जिसे कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जहां पर इस प्लाज्मिड में एक फैक्टर प्रेजेंट होगा या एक जीन प्रेजेंट होगा, द जीन कॉल्ड एज फर्टिलिटी फैक्टर, विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस प्लाज्मिड, अ रीजन ऑफ प्लाज्मिड. ठीक है, इस प्लाज्मिड का एक छोटा सा रीजन, it is extra chromosomal part of DNA called as plasmid, and on this plasmid, इसी प्लाज्मिड पे प्रेजेंट रहने वाला एक छोटा रीजन having a fertility factor denoted by symbol F+.
यहाँ F+ इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके पास एक एबिलिटी होती है, दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर दिस फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम दिस प्लाज्मिड बाय यूजिंग अ पिलाई इनटू द नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल बाय फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक दिस वन। ये जो दो बैक्टीरियल सेल्स है बिलोंगिंग टू द सेम और डिफरेंट स्पेसीज, इन दो बैक्टीरियल सेल्स में देयर पिलाई कैन फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ब्रिज। यहां एक कॉन्जुगेशन ब्रिज तैयार होगा या फिर एक कॉन्जुगेशन चैनल तैयार होगा, और इसी कॉन्जुगेशन ब्रिज या कॉन्जुगेशन चैनल से ये जो प्लाज्मिड है, दिस प्लाज्मिड हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल। इस प्रोसेस को कहा जाता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, एंड पिलाई आर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। कहाँ इन्वॉल्व होंगे ये पिलाई? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, विच आर लेस इन नंबर, मैक्सिमम 2 पिलाई पर बैक्टीरियल सेल इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इससे ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगेन द थर्ड टाइप ऑफ आउटग्रोथ, पिलाई का बस इतना ही फंक्शन है, एंड ये जो कॉन्जुगेशन कहा गया है इसे ही कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, वैसे तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट एज दीज सेल्स आर एबल टू ट्रांसफर देयर प्लाज्मिड कंटेनिंग फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम वन टू अनदर बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन ब्रिज, इट इज रेफर्ड एज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रेजेंट वेयर दिस सेल इनिशियली यहाँ फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसे कहा जाता है F निगेटिव। फ्रॉम F निगेटिव इट गेट कन्वर्टेड टू F पॉजिटिव। इन सिंपल ये फंक्शन होता है पिलाई का। एंड आफ्टर पिलाई जो थर्ड टाइप का आउटग्रोथ है, सबसे स्मॉलेस्ट, इसे कहा जाता है फिम्ब्री, द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ outgrowth, again made up of a protein पिलीन। दोनों भी एक ही टाइप के प्रोटीन से तैयार हो गए, इस प्रोटीन को कहा जाता है पिलीन। फिम्ब्री आर स्मॉलेस्ट इन लेंथ एंड न्यूमरस ऑन अ बैक्टीरियल सेल ऑन आउटर सरफेस, इज अ टाइप ऑफ सेल्यूलर अपेंडेज, और इनका प्रेजेंस जो है ये न्यूमरस होता है। इन सिंपल, ठीक है, ये लोकोमोशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे, ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। ये जो फिम्ब्री है, दीज फिम्ब्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अडेजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। क्या करेंगे ये? अडेजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। जब भी ये बैक्टीरियल सेल किसी सरफेस पर अटैच होते हैं या किसी सेल को अटैच हो गए, इफ द बैक्टीरियल सेल इज पैथोजेनिक, मोस्ट ऑफ द टाइम द कंटेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड द फिम्ब्री जो अडेजन के लिए यहाँ पर यूज किए जाएंगे, दे शो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर इन दोनों में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। Okay, and these fimbri are only responsible for the process of bacterial adhesion to form a glutinate of bacterial cell, और ग्लूटिनेट जो अग्लूटिनेशन के प्रोसेस है बैक्टीरियल सेल्स में, अग्लूटिनेशन विद इन अ ग्रोथ मीडियम, यह हम आगे स्टडी करेंगे जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ स्टडी करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ मीडियम। तो यहाँ आने वाले ये सभी कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अग्लूटिनेशन है, सेल टू सेल अडेजन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ मीडियम में द फिल्म, जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियल फिल्म, ओके।
इस बैक्टीरियल फिल्म का भी एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। मोस्ट कॉमनली इस बैक्टीरियल फिल्म को बायोफिल्म भी कहा जाता है। दैट इज अ थीन लेयर, फिल्म यानी एक थीन लेयर तैयार होता है, इस टाइप के आउटग्रोथ से तैयार होगा, यहाँ इसे कहा गया है फिम्ब्री। ओके, तो ये सब स्टडी किया है हमने। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैजेला स्टडी किया, देन द पार्ट ऑफ पिलाई एंड देन अ पार्ट ऑफ फिम्ब्री, कलेक्टिवली फॉर्मिंग द साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे आने वाले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम यही पार्ट देखेंगे यहाँ तक कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। हमारे अगले लेक्चर में जो हम कल देखेंगे, इस अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द सेल कवरिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे आता है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तब तक ये एंटायर कंसेप्ट जो है, इस एंटायर कंसेप्ट को आप लोग एक बार रीड कर लीजिए नोट्स में से।